So everybody has came, right? Statistics. You're able to see my screen? Yes, sir. Okay. So this is actually the, you know, science. Statistics is a science in itself, or it deals with collection of the data, organization of the data. Very important branch this is right now. Actually, these days it has become a lot sophisticated and a lot useful. So it is actually deals with the collection of the data, organization of the data, and what you can say, what you say, like how to manage the data, management, which is a type of organization, management of the data, and this thing will use we will use for interpretation of something, interpretation of data. सो कोई बेसिक चीज़ हमारे पास है, बेसिक डेटा हमारे पास है, चाहे किसी कंपनी का हो, चाहे किसी हेल्थ सेक्टर का हो, चाहे किसी बैंक सेक्टर का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, तो उसको कलेक्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, क्लीन करना, चेंजेस करना, सजा के रखना, मैनेज करना, फिर उसके बाद उसमें से इंटरप्रिटेशन निकालना, interpretation of the data. So this all is related with statistics, and nearly every company uses statistics these days, and every big sector uses statistics these days. So that's why this is very important, which you have to understand. But here in 10th class it is very basic. It is just the ABC of alphabets, and then a person can go for PhD. बट ABC पढ़ना ज़रूरी है, तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स 10th में इंसान जब पढ़ेगा पूरा अच्छी तरह, तो he will be able to then go to like the higher part of it. तो collection of the data, organization of the data, management, interpretation of the data, and इससे हम क्या करते हैं, ये इसमें तीन चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट इस स्टैटिस्टिक्स में, जिसको हम कहते हैं, because statistics is is a type of like three things. What it is descriptive. One type of statistics, it is descriptive statistics. Second is predictive statistics, and then the third is prescriptive statistics. So descriptive statistics means वो सारे टूल्स और वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करना, जैसे आप कह रहे हो एवरेज, मीन, मीडियन, मोड या बाकी बाकी चीज़ें, उन सब को इस्तेमाल करना टू डिस्क्राइब डेटा, मतलब व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट इज़ हैपनिंग। किसी कंपनी में आप देखोगे विंटर्स में सेल बढ़ रही है किसी आइटम की, so you are describing something by the data. You are saying that in this company, in Walmart, what is happening in winters, fala thing, or these things are getting increased in the sales. So before getting the sales increase, before reaching the winter season, the Walmart increases the stocks of that item. क्यों? उसको पता है कि बाय अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मेरा क्या हो रहा है, विंटर्स में मुझे ये चीज़ जो है वो बढ़ रही है उसकी सेल्स। तो इट इज़ ऑल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स इन दैट। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम डिस्क्राइब करते हैं डेटा को कि भाई ऐसे है मसला, ये मसला है, वो मसला है। फिर प्रिडिक्टिव स्टैटिस्टिक्स में वी प्रिडिक्ट that this is gonna happen, this thing is gonna happen, this thing is gonna happen. So 1 second, Burgess is saying something. Burgess, are you listening to my voice? सर SB और EB कौन है? EB ईदी बांड है, SB कौन है? Soleha. अच्छा ठीक ठीक, हम्म, बर्जीस भी बोल बर रही थी। हाँ, लेकिन बर्जीस है कहाँ? बर्जीस के दो अकाउंट्स है और दोनों में दिखा रहा है ये
I'm trying to call her again. Let us see what will happen. Okay, so Burjis, have you joined? Okay, आवाज आ रही है clear? Okay, तो मैं बता रहा था कि statistics is what? Organizing, interpreting, analyzing the data, and ये इसके 3 parts हैं. एक है descriptive statistics, दूसरा है predictive statistics, और तीसरा है prescriptive statistics. So predictive statistics में we just analyze what is the trend, which trend is followed by the data, और किस वक्त क्या हो रहा है, किस वक्त क्या prediction हम कर सकते हैं. फिर उसके बाद after using these descriptive and predictive statistics we can then use prescriptive statistics for prescribing something, for changing our way of work in a sector, so that our like salary, or like what you can say, the amount of money which we earn, that will increase. सो प्रिस्क्रिप्शन में हम क्या कर सकते हैं कि भाई डेटा ये कह रहा हमें और प्रेडिक्शन ये है हमारी, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम ये चीज़ जो है इसको बंद करेंगे और नई चीज़ जो है उसको खोलेंगे. वॉच कंपनी है, वॉचेस की सेल्स डाउन हो रही है, और हम मतलब डेटा हमारा ये कह रहा है कि वॉचेस की सैलरी इसलिए डाउन हो रही है क्योंकि जब से मोबाइल्स बढ़ रहे हैं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, जब से मोबाइल्स का जो डेटा मतलब मोबाइल्स का जो रिवाज है वो आम होता चला गया, तो वॉचेस की जो है वो कम होती चली गई. तो व्हाट शुड वी डू? क्या हम ऐसी क्या हम एक रॉयल वॉचेस बनाएं जो रॉयल लोग ख़रीदें और फिर उनके लिए एक स्टैंडर्ड बन जाए, कि हम वॉचेस के बदले कोई और काम करें? सो देयर इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन नाउ, what needs to be done. So this is all dealing with prescriptive statistics. So this whole thing is the base bone of every big sector. I was also working in Mu Sigma. Mu Sigma is a big company, and I was working as business analyst there. तो मेरा भी यही काम था, स्टैटिस्टिकल टूल्स को इस्तेमाल करना और स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल करना, जिसमें हम SAS है एक सॉफ्टवेयर, SQL है दूसरा सॉफ्टवेयर, MySQL, Python. तो ये सब चीज़ें हम जब इस्तेमाल करते थे, these are all statistical tools. तो हम जब इस्तेमाल करते थे, हम बड़ी बड़ी कंपनीज़ जैसे फाइज़र है, फाइज़र इज़ अ बिग कंपनी इन हेल्थ सेंटर, तो हम उसमें से इनसाइट्स निकालते थे, मतलब व्हाट इज़ द ट्रेंड गोइंग ऑन एंड व्हाट वी शुड टेल टू द कंपनी सो दैट दे विल अर्न मोर. So this was the whole thing which was happening there. So what we were using, only statistics. That's why this is the most attractive job these days. Everybody needs it, and statistics is the base of artificial intelligence also. If anybody wants to go in the artificial intelligence, so it is the base for that. Machine learning, it is a base for that. Big data, it is a base for that. So this all is related with statistics. So we are going to just do the ABC of statistics in 10th class, but if somebody is interested, he can go further. So before going for like the questions, let us understand the basic things here. In order to like simple thing जो है हमारे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में, हम जब पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन में कोई चीज़ एनालाइज करना चाहते हैं, तो वी डोंट टेक द होल पॉपुलेशन, विल जस्ट टेक द सैम्पल आउट ऑफ इट. कोई सैम्पल लेंगे, या कुछ सैंपल वहाँ से, कुछ सैंपल यहाँ से, कुछ सैंपल अमेरिका से, कुछ सैंपल ऑस्ट्रेलिया से, फिर उसमें से देखेंगे कि भाई क्या हो रहा है जो हमें चाहिए, मतलब व्हाट इज़ द हेल्थ गोइंग ऑन विद द टाइम के हिसाब से हेल्थ में क्या हो रहा है, ग्राफ देखेंगे हम. तो फिर देखेंगे सेनेगल में भी देखेंगे, अमेरिका में भी देखेंगे, तो फिर हम उनको कंपेयर कर सकते हैं. तो व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, वी आर टेकिंग ए सैंपल, राइट. सो द होल थिंग इज़ अ पॉपुलेशन, बिग थिंग, और उस सैंपल में से जब हम थोड़ी सी चीज़ निकालेंगे, फिर हम कहेंगे कि भाई हम इस पे हम काम करेंगे और इसका हम देखेंगे, दैट इज़ द सैंपल पॉपुलेशन,
राइट। और सैंपल सर आप प्लीज फिर से रिपीट कर सर हाँ जी, आप प्लीज ये रिपीट करेंगे क्योंकि मुझे ये डिस्कनेक्ट हो गया थोड़ी देर के लिए। तो मैं कह रहा था कि हम जब भी काम करते हैं स्टैटिस्टिक्स के साथ, सो वी डोंट टेक द होल थिंग इनटू कंसिडरेशन, वी जस्ट टेक द सैम्पल्स, वी जस्ट टेक द चंक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। दैट इज़, अगर हमें चाहिए टोटल हाइट का एवरेज ऑफ होल वर्ल्ड, एवरेज हाइट ऑफ द होल वर्ल्ड, जितने भी लोग दुनिया में बस रहे हैं उन सब का एवरेज हम देखना चाहते हैं हाइट का, तो वी विल नॉट टेक ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द होल वर्ल्ड। व्हाट विल डू, हम मान लो 100 लोग अमेरिका से लेंगे, 100 लोग इंडिया से लेंगे, 100 लोग पाकिस्तान से लेंगे, 100 लोग बांग्लादेश से लेंगे, 100 लोग, यानी विल जस्ट टेक द sample. So what we are gonna do is we'll take a sample population. So जिस पर आप काम कर रहे हो, that is the sample, and that is why we will call that sample population, and the whole thing which was there is called actual population. So जो आपको data मिलेगा sample population से directly, you, if ED is going to work directly and she is gonna go to US, and then she is going to calculate the average height of 100 people, then ED is getting the data which is called primary data, because she is directly getting it from the source, from the, like, जिस पर इसको काम करना है, primary data. But if I'm sitting at my home and I want to know the rainfall of average rainfall of US का रेनफॉल कितना होगा, कितना होता है हर साल एवरेज, तो आई विल डायरेक्टली नॉट गो टू यूएस एंड देन सिट देयर फॉर होल ईयर एंड देन आई विल जस्ट what do you say, use the methods to get the rainfall. No, but I will talk to US guys and I will tell to them like how much is the average, and I will see on the internet, and then I will get the data. So that getting of the data is called secondary data, right? So data is also having a very important like definition. Data is different for different people, but for statistical people, for analyzing and organization of like the companies, data is what you say, data is what you are interested in, like you are interested in the age group, so data is your age group. You are interested in the height, so data is your height, right? Otherwise data can be in computers, data means that what do you say, the how many bytes you're having, how much speed you're having, 2 Mbps, wo ye. So it depends what type of scenario you're using data. So here you're using data for calculating the average height, which I was like telling you example. So average height निकालने के लिए जो डेटा हम इस्तेमाल करेंगे वो हम सैम्पल से लेंगे, from samples of different people, right? So उससे हमें पता चलेगा कि भाई average height क्या है पूरी दुनिया में. So that is called a primary data if we are going directly. But if we are like going taking the data from the other source, अगर हम किसी और source से data लेंगे तो that is called secondary data, right? That is called secondary data. And different terms in statistics are used to just give you the information of the whole data. For example, माइक्रोस्कोप क्या करता है? माइक्रोस्कोप एक बड़ी चीज़ को, आई मीन एक छोटी चीज़ को एनालाइज करता है, जैसे बैक्टीरिया है. Bacteria, it is not visible to our eye, to our naked eye. So what we'll do, we'll just use the microscope के नीचे इसको रखेंगे bacteria को, and we'll just zoom and zoom and zoom, and then we'll be able to see what this bacteria is, उसकी क्या dimensions है, उसका क्या यानी figure है, मतलब वो सब चीज़ें. तो माइक्रोस्कोप हमें एक बहुत छोटी चीज़ को जो बाहर से कुछ नहीं दिखेगा उसको हमें डिटेल्ड एनालिसिस देता है, right? Detailed analysis of that thing which is actually not visible, which is actually just nothing. In the same way, data is haphazard, data is spread all around. Statistical tools हमें क्या करते हैं? Statistical tools, what they do,
they become a microscope. They analyze these data and इसमें से देखते हैं कि भाई मैंने जो इस डेटा को देखा और एनालाइज किया, तो मुझे मतलब जिसका मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं देख रहा हूँ हाइट का, पूरी हाइट के एतबार से मुझे एक नंबर मिलेगा, जिस नंबर से मैं कह सकता हूँ कि पूरे सैंपल पॉपुलेशन का या पूरी पॉपुलेशन का क्या कंडीशन हो सकती है, सिर्फ एक नंबर की वजह से। वरना अगर मुझे कहना होगा कश्मीर में एवरेज हाइट है 190 सेंटीमीटर्स फॉर एग्जांपल, तो व्हाट आई हैव डन, मैंने कश्मीर में सैंपल लिया है और सैंपल में मैंने बहुत सारे लोगों को लिया है और उन सारे लोगों को जब कैलकुलेट की मैंने हाइट्स, तो उन सारी हाइट्स को मैंने एवरेज निकाला है। एवरेज निकालने के बाद मुझे एक नंबर मिला 190। सो इस एवरेज से मुझे ये पता चल रहा है कि कश्मीर के लोग जो है वो इसी के दाएं बाएं हैं, 190 के दाएं बाएं हैं ज़्यादा, यानी 190 के करीब है। 195 हो सकता है, 196 हो सकता है और 185 हो सकता है, 180 हो सकता है। तो दे आर क्लोजर टू दिस, राइट। अगर मैं वहाँ से दूसरी साइड से कहूँगा कि सेनेगाल में जो है एवरेज हाइट है 210 सेंटीमीटर्स, दैट मीन्स I can clearly say that Senegal is having more like longer people, very great height, because their average height is 210. So that means most of the people are closer to 210. So this is very important. Most of the people are closer to 210. That is why we are getting the average is 210. So these tools, these numbers are giving you the information about whole data. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 1000 लोगों को हमने हाइट कैलकुलेट की, 1000 लोगों को, 1000 पीपल, और हमें सिर्फ एक नंबर मिला। क्यों? क्योंकि हमने उनका एवरेज निकाला और हमें पता चला कि दिस 1000 पीपल्स की जो हाइट है ये करीब किस नंबर के है, ये किस नंबर के करीब है। तो हम फिर उसके बाद कुछ और एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पे कोट बनाने होंगे या हमें यहाँ पे पैंट बनाने होंगे, जैकेट्स बनाने होंगे, तो हम उस हिसाब से देखेंगे कि भाई एवरेज हाइट इतना है, तो इसीलिए हम एवरेज हाइट इतना लेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर 190 हियर। तो उस हिसाब से फिर हम एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं और फिर एक कंपनी चला सकते हैं। वेरी सिंपल थिंग। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि हमारा जो ये डेटा जो हम 1000 लोगों का ले रहे हैं, उसमें से हम सिर्फ अगर एक स्टैटिस्टिकल टूल इस्तेमाल करेंगे, दैट इज कॉल्ड एवरेज। ये हमारा पहला काम है, एवरेज, और यू कैन से मीन। दिस एवरेज और मीन गिव्स यू दैट नंबर which is you know those 1000 people are more closer to, वो नंबर जो नंबर आपको कह रहा है कि ये 1000 लोग जो है इनकी जो हाइट्स है वो क्लोजर टू किस नंबर है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है 3 नंबर्स 2 2 3 4 5, तो जब हम इसको क्या कहते हैं, उसको मीन निकालेंगे, तो हम क्या कहेंगे 2 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। सो हम कह सकते हैं 2 + 2 is 4, 4 + 3 is 7, 7 + 4 is 11, 11 + 5 is 16/5. So 16/5 means 3 point something. So we can say that these numbers 2 2 3 4 5 are closer to 3.1. They are very closer to 3.1. इनकी दूरी 3.1 से सबसे कम है। अगर मैं कोई और नंबर लेता, 2 लेता इस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ऑब्वियसली 5 बहुत दूर था 2 से, राइट, 4 बहुत दूर था 2 से। लेकिन जब मैंने 3.1 लिया तो मुझे ये पता चला कि भाई जो सबसे कम दूरी है सारे नंबर्स की, दैट इज 3.1. सो वी कैन से द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स इज 3.1 and we can get a picture of these numbers 2 2 3 4 5. It is actually 3.1, मतलब करीब है ये सब 3.1 के। तो this is the average and mean which we are going to use most often. So average or mean means if you're having 10 people and these 10 people are having 10 heights, what you will do, आप इन 10 हाइट्स को ऐड करोगे, राइट,
so on, divided by how many people they are. They are 10. So you will get a number. This number will give you the closest number, which is with which these all numbers are close to. सारे नंबर किसके क्लोज होंगे, तो ये आपको ये चीज़ देगा एवरेज, जो हमने अभी तक खाली एक डेफिनेशन पढ़ी थी. दिस एक्चुअली हैविंग ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. इसको एक क्या कहते हैं उसको, इससे हमें एक चीज़ दिखती है कि भाई ये क्या नंबर हमें दे रहा है, राइट. सो मीन इज गोइंग टू गिव यू द एक्चुअल थिंग, द एक्चुअल क्लोजेस्ट नंबर इन बिटवीन दीज नंबर्स. लेकिन कुछ ऐसे नंबर भी होंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ 2 + 2 + 3 + 4 + 2 + 5 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 1000. See what is going to happen? 2 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 1000. फिर डिवाइड बाय जितने नंबर्स ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अब जो यहाँ पे मीन आएगा, ये हमारे इस टूल को ख़राब कर देगा. जो ये टूल है एवरेज और मीन, तो ये हमारे टूल को ख़राब कर देगा. क्यों? क्योंकि इधर का मीन आप देखो. लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल. 2 + 3 + 3 + 1000 डिवाइडेड बाय 4. तो यहाँ पे जो मीन है वो बताओ कितना होगा? कितना होगा मीन? 504. 504. सो ये टूल हमारा खराब ही हो गया पूरा. नाउ we can't use this tool because there is a number which is so far from the other numbers कि मतलब इसकी हद ही नहीं. सो इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में, हम इसको कहते हैं आउटलायर. दिस नंबर इज एन आउटलायर. सो इसीलिए हम स्टैटिस्टिकल टूल्स में डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करते हैं इस आउटलायर को ख़त्म करने के लिए. वी डोंट टेक द आउटलायर्स बिकॉज दे जस्ट डू द दे जस्ट मेक आवर टूल्स वर्स्ट. वो हमारे टूल्स को ही ख़राब कर देता है आउटलायर. तो मीन जब हम लेंगे 504 इज नॉट हैविंग एनी कनेक्शन विद 233. इट्स वेरी फार फ्रॉम दैट. So that's why we don't take mean when you're having like this, or we don't take outlier when you're having condition like this. So this is called outlier, which is very far from the actual pattern which is going on. ये तो pattern हो रही थी 2 + 3 + 3 + 2 + 5 + 2 + 9 + 2 + 5 + 7 + 6 + 5, ऐसे सिंगल डिजिट्स नंबर्स की पैटर्न हो रही थी. और अचानक जो है बीच में ये नंबर आ गया, तो इसने जो है क्या कर दिया, सारे सिस्टम को ख़राब कर दिया. इसलिए हम कहते हैं दिस नंबर इज़ एन आउटलायर, दिस गाय इज़ एन आउटलायर. सो यूज करते तो तब भी वो आउटलायर बन क्या था. क्या फिर से बोलो. अगर कोई 2 डिजिट नंबर, अगर कोई 2 डिजिट नंबर हम हाँ 2 डिजिट नंबर को यूज करते, हाँ, क्या वो भी आउटलायर बन? डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ योर नीड. फॉर एग्जांपल 2 + 3 + 4 + 9 + 15 और 99. सो 15 और 99 में आसमान ज़मीन का फ़र्क है, राइट. हम क्या करते हैं डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स में, हम क्या करते हैं, वी टेक, हम जब सजाएंगे ना इन नंबर्स को 2 3 4 9 मतलब 5 ऐसे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में 2 3 4 5 9 भी आ गया, 11 भी आ गया, 15 भी आ गया, फिर 99 भी आ गया लास्ट में. तो जब हम इनको सजाते हैं, इनको रखते हैं एक साइड से, व्हाट वी डू, हम आगे वाले 75%, मतलब ऊपर वाले 75%, ऊपर वाले 25% और नीचे वाले 25%, वी जस्ट first leave them, we take the between the chunk, right. So this is further evaluation of statistical tools. असल में इसीलिए स्टैटिस्टिक्स को क्या पता है क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स को कहते हैं मतलब बिकॉज समटाइम्स इट कैन लीड टू द ट्रिमेंडस लाइज, ट्रिमेंडस झूठ ये क्रिएट कर सकता है इफ़ वी जस्ट सी द फिगर्स ओनली. एक कहते हैं ये, यू कैन सी इट ऑन द इंटरनेट ऑल्सो,
वन इज लाइज मतलब झूठ कहना, दूसरा हो गया they say it damned lies. Damned lies means terrible big बड़े झूठ, right? और तीसरा कहते हैं जो तीसरे नंबर पे इससे भी खतरनाक, that is statistics. So this is sometimes going to give you like shocks if you really will go inside it. So this will make you like there's one tool that's called correlation. Correlation हमें कहता है कि दो चीज़ें मतलब एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ को क्या हो रहा है उसके बीच में क्या कोरिलेशन है. तो समटाइम्स यू गेट द कोरिलेशन बिटवीन सो मच अजीब गरीब थिंग्स that you feel that it is totally impossible, and if you take that correlation, then you're going to land into different scenario. So there's not only numbers you have to finalize, you have to think about like what really makes sense. So according to that you have to use the statistical tools. तो मैं कह रहा था कि आप 2 digit number को कह रहे हो, yes it is outlier in our case because we are just doing 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9, and if 99 is there or 90 is there, it makes your mean shift. एक तो अगर 2 3 4 5 6 7 8 9 था तो मीन हमारा होता है यही 5 और 6 के बीच में, मान लो 5 है मीन. अगर बीच में ये 90 आ गया तो हमारा मीन ही शिफ्ट हो गया लगभग 40 के करीब. इट गॉट शिफ्टेड फ्रॉम 5 to 40. So it has just made it like jump from one pattern, one rhythm to just another shocking thing. That's why we say it is an outlier. Definitely it's an outlier, 2 digit number, but it depends on which 2 digit number. अगर 11 होगा तो maybe we can't say that. 12 होगा we don't know, we can't say it's an outlier. But if we go a little higher, 80, so definitely it's an outlier because it is going now shift your mean which was in between these like 1 and 9, जो इन बिटवीन था ये. अगर 11 12 भी आएगा फिर भी ये मीन 1 and 9 के ही बीच में आएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द नंबर्स आर इन बिटवीन दैट. लेकिन जब ये 80 आ गया बीच में तो इसने मीन को उठा के यहाँ पे पटक दिया तो सारा खराब हो गया. Just giving you a little bit extra information to just make your approach more open about the questions and about the things. Okay, now this was about mean. So mean हम कैसे calculate करते हैं? Simple, आपने पढ़ा है. Mean is different numbers you're having, for example x1, x2, x3, x4 and so on to xn. x1 हो गया पहला नंबर, x2 हो गया दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, सबका ऐड करके xn तक. This whole thing divided by कितने numbers है ये n numbers है, so divided by n. So mean is this thing, the definition of mean. And we use notations of that, but we'll do it afterwards, we'll not do it right now. So mean is simply sum of all numbers, all observations, you can say in general, sum of all observations divided by number of observations. So this is the simple thing which you will be like remembering. So mean is sum of all observations divided by number of observations. So कोई भी डेटा अगर आपको दिया हो, चाहे हाइट दी हो, चाहे एज दी हो, चाहे मतलब मार्क्स दिए हो, कुछ भी दिया हो, you can take their sum and then you will see how many they are, like there are 3, so you will get the mean. So mean is sum of all the observations divided by number of observations. Now second tool is for example you're having a data जो हमने अभी किया था इस्तेमाल, जैसे 2 2 3 3 3 4 and then 2 then 5 then 9 8 7 and then 22 39, right, and 95,
सो दिस इज आवर डेटा. सो अब इस डेटा में अगर हम मीन निकालेंगे तो मीन विल नॉट गिव यू द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन. क्यों? क्योंकि मीन जो है, आप अगर इनका नंबर्स का देखते 7 तक तो चलो ठीक था कि 7 तक जो एक्चुअल नंबर्स हैं, मतलब जो मोस्ट ऑफ द नंबर्स हैं, या ऐसा करो इनमें से एक फिर भी यहाँ पे डिलीट करो, जो मोस्ट ऑफ द नंबर्स हैं उनका मीन होगा इन बिटवीन लाइक 5-6 के करीब होगा ये, या 3-4 के करीब होगा, इन बिटवीन दैट. बट 39 और 95 these are outliers, so what they will do, they will shift the mean. अगर मीन यहाँ पे होता, they are going to shift the mean towards this point. So mean is getting disturbed and mean is getting lost and mean is getting changed to great extent. So at this moment we say that we have to use some another tool. Which tool we'll use? We'll see. We'll use first, हम क्या करेंगे, पहले हम सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. 2 2 2, 3 2 है तो पहले हम 2 2 2 लिखेंगे. फिर उसके बाद 3 3 3, 3 बार 3 है. फिर उसके बाद 4 एक बार है. फिर 5 एक बार है. फिर 6 नहीं है. 7 एक बार है. फिर 8 एक बार है. फिर 9 एक बार है. फिर 39 है. फिर 95 है. सो इस डेटा को कौन सा टूल अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर सकता है? सो व्हाट वी विल डू, पहला काम हमने इसको क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा. 2 2 2 3 3 3 4 5 7 8 9 39 95. फिर हमने इसको देखा कि इसका बीच वाला नंबर कौन सा होगा, क्योंकि जो बीच वाला होगा वो या तो ज़्यादा होगा या करीब होगा, मतलब दोनों यानी क्या कहते हैं उसको, इस डेटा की एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन वही बेहतर करेगा एज कंपेयर टू मीन. तो पहले हम देखेंगे बीच वाला नंबर कौन सा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 नंबर्स हैं. तो 13 में बीच वाला कौन सा होगा? 13 नंबर्स अगर है तो बीच वाला कौन सा होगा? हम्म 4. वही हम देखेंगे बीच में होगा, जो 6 यहां से डालेंगे, 6 वहां से, तो बीच में हमें मिल गया 4. सो दिस इज द सेंट्रल नंबर of the data which is arranged in ascending order. So this central number of the data is called the median. The most central part of the data is called the median, right? So mean, अगर इतने ही नंबर होते 2 2 3 3 3 4 2 5 9 8 7, जरा इसका मीन निकालो क्विकली. 2 2 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 24 33 41 50 41 48 48 divided by 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 22 33 44. सो 4.2 समथिंग. लेकिन खाली कितनों का? इतनों का, आउटलायर्स को छोड़ के. 4.2 आउटलायर को छोड़ के. लेकिन जब आप मीन लोगे तो आप सब कुछ लेते हो. तो जब आप सब कुछ लेते हो तो ये मीन जो 4.2 था पहले, ये शिफ्ट हो गया अब यहाँ. अब हम क्या करेंगे, हम मीडियन लेंगे, बिकॉज मीडियन विल नाउ रिप्रेजेंट मोर क्लोजर आउटलुक. सो हमने क्या देखा, जब हमने ये डेटा लिया, चाहे हम 39 और 95 भी क्यों ना लिया, फिर भी हमारा जो मीडियन है दैट इज 4, विच इज वेरी क्लोजर टू द मीन. So median is going to give you more clearer representation in terms of these things when you're having outliers. So this is the median. So you understand mean and median? So median का आप फिर से बोले. First step, we'll arrange the data in the ascending order, right? First step, arrange the data in ascending order.
Second step, check out the number which is exactly in between the data, जो exactly in between the data हो. So we got 4 in between, so that's why that is the median. Okay, so this is actually, मतलब जैसे height से मान लो 165, 165, 166, 166, 166. जो पता चला क्या, लेकिन इससे हमें पता चला कि ये जो डेट मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जांपल, जैसे हम हाइट्स ले रहे हैं 165, 165, 166, 166, 166, 169, 169, मैं आप असेंडिंग लिख रहा हूँ डायरेक्टली, 169, 169, 168, 168. हाँ, और अगर ये होते एक मिनट, हाँ, अगर ये 12 होते तो फिर आप इन दोनों के बीच में जो नंबर्स हैं उनको एवरेज करते. जैसे 4 और 5 अगर होता, 4 + 5 डिवाइड बाई 2, दैट इज 4.5. वो तो अलग चीज़ है. आप जस्ट आई एम गिविंग यू द इंट्रोडक्शन ऑफ द मीन मीडियन, राइट. सो मैं कह रहा हूँ कि मीडियन हमें क्या कह रहा है, जैसे हमारे हाइट्स हैं, लोगों की हाइट्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हमारा डेटा बन रहा है 165, 165, 166, 166, 169, 169, 169, 169, 168, 168, 168, 169, 169, ऐसे ही 170 दो को है, ऐसे ही होते होते मान लो एक को है 210, या दो को है 205, ये दूसरे को है 205. तो यहाँ पे कोई चीज़ डिसाइड करने के लिए कि हम लोगों के लिए क्या चीज़ बनाएंगे, क्या कपड़े बनाएंगे, क्या हाइट के हिसाब से क्या दरवाज़ा बनाएंगे, तो उस हिसाब से वी हैव टू टेक, it is better we have to take the median here, because when you will take the mean, that will be more shifted towards 210, because it is big number which is away from the pattern, from the trend. पैटर्न और ट्रेंड है वही 165, 169, 170 के करीब, 165 to 170 लगभग. लेकिन जब ये मतलब मीन आप लोगे तो ये एक शिफ्ट करेगा इसको टूवर्ड्स 200, जो हमारी कैलकुलेशंस ख़राब कर देंगी अगर हमें कुछ बनाना है फॉर एवरेज पीपल. तो हम क्या करेंगे, हम इस वक्त मीडियन लेंगे. हम पहले इनको सारों को जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, फिर देखेंगे बीच वाला नंबर कौन सा है. जैसे मान लो बीच वाला नंबर हमें आया 168, तो हम 168 के हिसाब से एवरेज हाइट ऑफ द कश्मीरी इज 168, सो दैट इज व्हाई वी विल टेक 168 एज द हाइट, एंड वी विल डिसाइड द डोर लेंथ, और वी विल डिसाइड द कोट लेंथ, और विल डिसाइड द रेडीमेड कपड़े जो भी है, विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू दिस 168, नॉट 210 एंड 205. आर यू गेटिंग? एक और बार बोलिए सर. हमें कश्मीर में कोई दुकान खोलनी है या कोई फैक्ट्री खोलनी है कोट बनाने की, या कोई भी चीज़ है, लेकिन इको आ रहा है तो इसीलिए म्यूट रखो. तो हम क्या करेंगे, हम लोगों का सैंपल लेंगे. मान लो 100 लोग लेंगे, कुछ लोग छानापुरा से, कुछ लोग बटमालू से, कुछ लोग बसपुरा से. तो फिर उनके हाइट्स हम मेजर करेंगे, विल मेजर द हाइट्स. तो जब हमने उनकी हाइट्स मेजर की, हमें मिला 165, 165, 166, 166, 169, 169, 168, 169, 170, 169, 168, और कोई ऐसा भी था यूसुफ माशाल्लाह ज़बरदस्त जिन्हू, तो 210, 205 भी मिला. तो अब अगर हमें डिसाइड करना है कि भाई हमारा जो है एवरेज हाइट जो होगी हमारी, हम उस वक्त एवरेज लेंगे कि हम उस वक्त मीडियन लेंगे. उस वक्त अगर हम एवरेज लेंगे तो हमारा एवरेज शिफ्ट होगा, हमारा एवरेज होगा मान लो नियरली 190 फॉर एग्जांपल. अगर ये 190 के हिसाब से हमने काम किया तो हमने इतने बड़े यानी 99% लोगों को छोड़ दिया. उस हिसाब से हमने नहीं बनाया बड़े कोट, बड़ा दरवाज़ा, बड़ा सब कुछ बनाया हमने 190 के हिसाब से. तो इसीलिए हमें इस वक्त मीन जो है वो काम नहीं आएगा. हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ द मीडियन. मीडियन क्या करेगा हमें, हम असेंडिंग ऑर्डर में सारे नंबर्स लिखेंगे,
पहले 165 वाले, फिर 166 वाले, फिर 168 वाले, फिर 169 वाले, फिर 170 वाले, फिर उसके बाद 205 और 210। तो जो बीच में आया नंबर एग्जैक्टली मान लो वो 168 आया, तो हम कह सकते हैं कि भाई 168 है हमारा एवरेज इस वक्त, क्योंकि ये है हमारा मीडियन। और मीडियन के हिसाब से हम क्या करेंगे, हम दरवाज़ा बनाएंगे, हम कोट बनाएंगे, हम कपड़े बनाएंगे, या शू लेंथ होती है वो, आप दुकानों के पास जाओ, कह नफर तम 10 नंबर लगा, फॉर एग्जांपल तमिस मुश्किल गछान अन कि यमिस 6 नंबर लगा, बताओ। 10 नंबर वाले को बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि ये आउटलायर है, ये आम इंसान नहीं, मतलब ये आम एवरेज में नहीं है। तो अगर आप 10 वालों को भी लेते ना मीन में, तो आपका जो है 9 या 8 8 8, फिर होता है 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 बहुत होता, तो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता आपका मीन टुवर्ड्स 8 एंड 9, तो जिसकी वजह से आप ज़्यादा जूते बनाते 8 और 8.5 और 9 के, जो हम गलत करते। आपकी आवाज ही चली गई, आवाज गया था बीच में। अच्छा, आपकी आवाज ही इस वक्त आ रही है? हाँ हाँ अब आ रही है। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि जूते की जो लेंथ है, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे कि हम अगर मीन लेंगे लोगों की जूतों की लेंथ्स का, तो वो मीन शिफ्ट होगा टुवर्ड्स 8 एंड 9, मतलब जैसे 8.5 हमें मीन मिला, अगर 8.5 हमें मीन मिला, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अगर आपने ज़्यादा जूते 8.5 वाले बनाए, तो आपकी डाउन हो जाएगी, मतलब इकोनॉमी, आप कमा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने कैलकुलेशन ही गलत की। हालांकि आपने मीन निकाला था, दैट वाज अ स्टैटिस्टिकल टूल, दैट वाज ग्रेट, बट इधर हमें मीन नहीं निकालना था, इधर हमें मीडियन निकालना था। क्यों? क्योंकि मीडियन आपको देता इन बिटवीन मोस्ट ऑफ द पीपल में, इन जो बीच में नंबर है वो क्या है एक्चुअली। तो उससे हमें पता चलता है कि भाई मान लो 6 आया हमें, क्योंकि 6 भी बहुत होते, 7 भी बहुत होते, तो 6 अगर आया हमें, तो हम कह सकते थे कि भाई आम तौर पर आप जो है, अगर आपको 100 जूते बनाने, अगर हमें फैक्ट्री बनानी थी, तो हम कहेंगे 90% जूते आप बनाओ 6, या 90% आप बनाओ 6 और 7, और 10% जो है आप बनाओ 5% बनाओ 8, 3% बनाओ 9, और 2% बनाओ 10। तो उस हिसाब से फिर हम कैलकुलेशन करते। वरना अगर आपकी मीन की कैलकुलेशन होती, तो आप कहते भाई 90% बनाओ 8.5, तो हालत ख़राब हो जाती। दुकानदार थवन इथे कन बूट निन वोल आसे न कहीं, क्या बूट गए सारनी। तो यह असली समझुन यतन कि कुस टूल निमो कम विज। तो मीन लिया हमने जब हमें मीन ज़रूरत था, लेकिन मीन अब यहाँ नहीं ले सकते, और मीडियन लिया हमने यहाँ पे, तो ये हमें एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। ऐसे ही आपको यही जूते का ही सिस्टम, इसमें हम एक और टूल भी ले सकते हैं, जिसको हम कहते हैं आम, जो आपने बचपन में सुना है, मतलब मोड 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7, फिर 8 8 8, फिर 9, फिर 10। तो ये हमारे मान लो सैंपल है डेटा का, जो जूतों की लेंथ है। तो इसको हमने या तो मीडियन लिया, मीडियन क्या है? बीच वाला नंबर। बीच वाला नंबर कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ 17 नंबर्स है ये। तो 17 में बीच वाला कौन सा है? 8 वहां रखो, 8 यहाँ रखो, तो बीच में बच गया 9th नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये हमारा बच रहा है, राइट। ये हमारा बीच में है, मीडियन। तो अगर आपने यहाँ पे मीडियन लिया, मैं अब दूसरी एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड।
अगर आपने यहाँ पे मीडियन लिया तो फिर भी आपने थोड़ी सी गलती तो हो गई आपसे। क्यों हो गई? क्योंकि ज़्यादा लोग जो है वो 6 लगाने वाले और 7 तो कम लोग थोड़े से लगाने वाले। तो इसीलिए अगर आप मीडियन लोगे तो थोड़ी सी गलती तो हो गई, लेकिन चलो फिर भी मीन से ठीक है, मीन न लेने से तो ठीक है, राइट? मीन न लेने से तो ठीक है। अगर मीडियन लिया 7 तो चलो ठीक है, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक और टूल दैट इज कॉल्ड मोड, ताकि हमें एक्चुअल पता चले कि भाई ज्यादा है कौन। तो मोड इज सिंपली विच नंबर कम्स मोर फ्रीक्वेंट। मोर फ्रीक्वेंट जो नंबर होगा, जो डेटा होगा, जो एंट्री होगी, मोर फ्रीक्वेंट, विच नंबर कम्स मोर फ्रीक्वेंट। सो वी कैन से 7 तो आ रहा है 5 बार, 8 आ रहा है 3 बार, और 9 और 10 की तो बात ही नहीं, एक एक है। 6 आ रहा है 6 बार, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 6 आ रहा है 7 बार। तो mode is that number which comes more often, more frequent. So mode is 6, median here is 7, right? Mode is 6, median is 7, और mean कितना होता जरा कैलकुलेट करो। वन 26 डिवाइडेड बाई, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17। 126 by 17, how much? सर 7.4। हाँ, मान लो 7.5, क्योंकि जो हमारा जूता होगा वो 7.4 नहीं होगा, 7 7.5 8 8.5 ऐसे। तो चलो हमने लिया 7.5। तो अब देखो, मीन आ रहा है 7.5, मीडियन आ रहा है 7, और मोड आ रहा है 6। अब आपकी कंपनी अगर मीन के साथ चली जाती तो ज़्यादा खसारे में थी, अगर मीडियन के साथ चली जाती तो कम खसारे में थी, और अगर मोड के साथ चली जाती तो ज़्यादा नफ़ा में थी, क्योंकि आपने एग्जैक्ट कैलकुलेशन की। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट, व्हाट यू नीड, वेयर यू वांट टू अप्लाई दीज टूल्स। तो उस हिसाब से आपको देखना है कि विच टूल विल बी बेटर फॉर मी। सो दिस इज जस्ट अ सिंपल, मतलब 3 टूल्स विच आर द ABC। इट इज कॉल्ड ABC। फिर उसके बाद A फॉर एप्पल भी सीखना है, B फॉर बॉय भी सीखना है, C फॉर कैट भी सीखना है, राइट? फिर उसके बाद सीखते सीखते फिर PhD थीसिस करनी है, पहुंचना है फिर। तो वो है असल में स्टैटिस्टिक्स, वेयर द थिंग्स विल बिकम मोर एंड मोर लाइक। फिर डेटा होता है लाखों लोगों का और लाखों चीज़ों का और लाखों, फिर उसके बाद उस डेटा को इंटरप्रेट करना, यूज़ करना, इस्तेमाल करना, क्लीन करना, और फिर वहाँ से इंसाइट्स निकालना, ये हो रहा है, ये हो रहा है, कोरिलेशन निकालना, वेरिएंस निकालना, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना। जस्ट गिविंग यू द नेम्स दैट इट इज़ नॉट ओनली, दुनिया इतनी नहीं है मीन मीडियन मोड जो हमने सीखा है, बल्कि इट इज़ मोर देन दैट। देयर इज स्टैंडर्ड डिविएशन, देयर इज वेरिएंस, देयर इज कोवेरिएंस, देयर इज कोरिलेशन, there is binomial distribution, there is Poisson's distribution, there are so many things.
So just to give you a little bit overview of this statistics, what this really is. So हमने अभी मीन, मीडियन और मोड को थोड़ा सा देख लिया, तो ये सबको समझ में आ गया। मीन, मीडियन, मोड, मीन कैसे निकालना, मोड कैसे निकालना, मीडियन कैसे निकालना। और ये आपने किया भी है वैसे 9th में। आया समझ में सबको? ओके, सो दिस वाज जस्ट द रिकैप। अब उसके बाद फिर हमें डेटा जो होगा ना, दैट विल बी इन डिफरेंट फॉर्म्स। डेटा विल बी इन डिफरेंट फॉर्म्स। फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं उसको, जैसे एज होती है, मान लो एज 0 to 3 years, then 3 to 6 years, then 6 to, or we can say a little bit bigger, 0 to 10 years, 10 to 20 years, 20 to 30 years, 30 to 40 years, 40 to 50 years, 50 to 60 years, 60 to 70 years। हम कह सकते हैं भाई, मान लो हम एक ऐसा डेटा निकाल रहे हैं कि हाउ मेनी पीपल, द रेट ऑफ मोर्टेलिटी इन दिस एज ग्रुप, in this age group, in this age group, in this age group, worldwide or in some country. So rate of mortality, so 0 to 10 by out of like 1 million, 0 to 10 years वालों में there are like 20,000 people. Out of 1 million, there are 20,000 people, they die. There are 20,000, and out of 10 to 20, there is 500. Out of 20 to 30, there is 447, for example. Out of 30 to 40, there is 1,020. There is 40 to 50, there is like, what you can say, 3,798. So out of 50 to 60, there are more people dying, like 17,000. Out of 60 to 70, there are more than that, like 89,000. तो फिर उसी हिसाब से एक डाटा हमें मिला। तो डाटा मिला इस हिसाब से कि एक ग्रुप हमने कैलकुलेट किया। हमने ये नहीं किया कि 0 साल का कौन सा मरा पहले, यानी माजी 1 साल का कौन सा मरा, दूसरे साल का कौन सा मरा, 3 से नहीं, बल्कि हमने एक ग्रुप लिया 0 to 10 years में जितने भी बच्चे हैं वो इसी में आएंगे सब। लेकिन ये ख्याल रखना चाहिए, अगर आपको लिखा है 0 to 10, दैट मीन्स 0 to 9.99999, 10 इसमें नहीं है, 10 दूसरे में है, ये ख्याल रखना है। जो एग्जैक्टली 10 साल का हो गया वो दूसरे इंटरवल में आएगा, जो एग्जैक्टली 20 साल का हो गया वो तीसरे इंटरवल में आएगा, राइट। सो दिस थिंग यू हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन। 0 to 10 मींस टू 10, नॉट इंक्लूडिंग 10, राइट। इसको हम कहते हैं, वो सेट्स में शायद आपने पढ़ा नहीं है, वैसे वो 11th में है, ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल। सो दिस इज open interval. So what you can do is 10 is excluding. Huh? Excluding, yes, it is excluding. Excluding 10, excluding 20, excluding 30. So 0 to 10 means 0 से now plus 9 plus, चाहे वो एक दिन पहले ही क्यों ना मरा अपने बर्थडे से, 10 year वाले के, तो that is included in this 0 to 10 years. So we are now taking a group, we are taking a class, we are taking a, like what do you say, from range, a type of. So this range, this class is called class interval, simple. Class interval. So class interval is that you are taking a range of the age of the people. So class interval. In the same way you can take the range of any other things. Range 0 to 10 में इतना, 10 to 20 में आप class सब ले रहे हो, right? You're taking one class, you're taking one group, you're taking one range. So that is called class interval, right? Class interval ये है 0 to 10 class interval, 10 to 20 class interval. और इसकी जो मान लो length हम कह सकते हैं वो कितनी है, बड़ा माइनस छोटा, 10 minus 0, 20 minus 10,
30 माइनस 20, तो क्लास इंटरवल सेम रहेगा, दैट इज इक्वल टू 10, राइट। फिर उसके बाद इस क्लास इंटरवल में जो सबसे बीच वाला पॉइंट है, जो मार्क है बीच वाला, एग्जैक्ट बीच वाला, सो इट विल बी व्हाट, 0 अगर यहाँ पे है, 10 अगर यहाँ पे है, 10 अगर यहाँ पे है, 20 अगर यहाँ पे है, तो बीच वाला क्या होगा, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, राइट, दोनों को ऐड करके डिवाइड, जैसे मिड पॉइंट थ्योरम याद है कि भूल गए, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सॉरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे निकालते थे, मिड पॉइंट x और y अगर है तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y बराबर है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इन द सेम वे हेयर 0 to 10, 0 plus 10 divided by 2, that is called 5. So 0 to 10 का जो क्लास मार्क है, that is 5. 10 to 20 का जो क्लास मार्क है, 10 plus 20 divided by 2, that is 15. 22 plus 30 divided by 2, that is 25. 5, 10, 15, 25, 35, 45, 55, 65. These are all class marks. Class marks. Right? So this is all class mark, and this is class interval 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. और जो ये एंट्रीज हैं, मतलब 0 to 10 years जो है वो इतने मरे, 20,000. This is a number, right? It's a number of deaths per million. Number of deaths, you can say. So what you can see is 20,000 is actually it is a number. A number, we say in statistics, we say that number मतलब कितनी बार है ये, कितने times है ये, कितने लोग है ये, we call that as frequency. How many times, how much they are. So we'll just understand this thing again in future questions. So this is called frequency, right? For example, in some different data we'll be able to understand this more clearly. Frequency, which is represented as Fi. Just giving the Fi means अगर पहला डेटा हम ले रहे हैं तो F1 होगा I के बदले, I is equal to 1 at that point. अगर दूसरा ले रहे हैं तो F2 होगा I के बदले, I is equal to 2 at that point. ऐसे ही I अगर n है तो Fn, तो F1, F2, Fn, F3, F4, F5, तो जनरल में लिखते हैं Fi. तो ये हमारा रहा आपका जो है क्लास इंटरवल, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी. अब हम देखते हैं थोड़ा क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ पता चलेगी. जस्ट विल स्टार्ट little bit. So it is telling you, first question of the exercise, a survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program. तो उन्होंने सर्वे किया है in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. So इन्होंने number of plants, ये घर गए और उन्होंने देखा कि नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं लोकेलिटी में, राइट. तो फिर नंबर ऑफ प्लांट्स और देखा है नंबर ऑफ हाउसेस, तो ये जब घर गए इनने देखा, जब इनने सारा लिखा फिर उन्हें एक टेबल बनाया. तो ये कह रहा है फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, हमें निकालना है मीन कि कितना है एवरेज. तो हम देखेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स 0 to 2 कितने घरों में है, आया समझ, मतलब कितने घरों में या तो कोई प्लांट नहीं, या तो एक है, या तो बस इतना, क्योंकि 2 इज इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट वन. आ रही समझ बात. कुछ तो बोलो. Yes sir, आ रहा है समझ. तो 0 to 2 कितने घरों में 0 to 2 है, यानी या तो कोई प्लांट नहीं या तो एक प्लांट है, क्योंकि 1.5 प्लांट तो हो नहीं सकता, तो एक घर है, ऐसा एक घर, only one. Now second thing,
2 to 4, यानी किसी घर में 2 होंगे, किसी में 3 होंगे, 4 नहीं, 4 तो दूसरे में है, राइट। 2 और 3 कितने घरों में है? किसी के घर में 2 प्लांट्स होंगे, किसी घर में 3, वो सब इस इंटरवल में आएगा, तो वो है 2, राइट। फिर उसके बाद 4 to 6, 4 से 6 1 4 से 6 प्लांट मीन्स 4 और 5, दैट इज 1। फिर 6 to 8 6 to 8 5 5, ओके। 8 to 10 6 ओके। 12 to अच्छा 10 to 12, 10 to 12 10 12 14 3 12 to 14 है 3। तो ये हमें मिला नंबर ऑफ प्लांट्स और कितने घरों में इतने नंबर ऑफ प्लांट्स है। जैसे जैसे 6 to 8 मतलब या तो 6 होंगे या तो 7 होंगे, 7.5 तो होंगे नहीं, या तो 6 होंगे या तो 7 होंगे, तो वो होंगे 5 घरों में आपको 6-7 प्लांट्स मिले, 6 घरों में आपको 8-9 प्लांट्स मिले, और 2 घरों में आपको 10-11 प्लांट्स मिले, राइट। और 12-13 प्लांट्स आपको मिले 3 घरों में। तो ये इन्होंने कैलकुलेट किया। अब देखो मसला है यहाँ पे कि आप जब नंबर ऑफ हाउसेस देख रहे हो, 1 घर, 2 घर, 1 घर, 5 घर, प्रॉब्लम है यहाँ पे 2 और 4। हम 2 लेंगे कि 4, मतलब अगर नंबर ऑफ प्लांट्स हमें देखने हैं टोटल में, तो हम 2 नंबर ऑफ प्लांट्स लेंगे, 2 घरों में है, हो गया टोटल 4 नंबर ऑफ प्लांट्स। क्या हम 3 नंबर ऑफ प्लांट्स लेंगे 2 घरों में, हो गया 6 नंबर ऑफ प्लांट्स। मतलब समझो इस चीज़ को जो मैं कह रहा हूँ फिर से। अगर हम लेंगे 2 to 4 नंबर ऑफ हाउसेस है 2, राइट। नंबर ऑफ हाउसेस 2 है और 2 घरों में 2 से 4 प्लांट्स हैं। तो 2 से 4 प्लांट मीन्स या तो उनके घरों में 2 प्लांट्स होंगे या तो 3 प्लांट्स होंगे। लेकिन अगर हमें देखना है टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन घरों में कितने हैं, इन 2 घरों में कितने हैं टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, इन 2 घरों में कितने हैं टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, यानी इस 2 घर में टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं। अगर मैं 2 प्लांट्स लेता हूं 2 घरों में, तो मतलब अगर 2 घरों में 2 प्लांट्स है, मतलब 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गए 4। ये समझ में आया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कैसे? यस सर। और अगर 3 प्लांट्स है 2 घरों में, 2 घरों में 3 प्लांट, यानी एक घर में भी 3, दूसरे घर में भी 3, तो हो गए 6। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया 6, 3 + 3 6, या 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 प्लांट्स है 2 घरों में, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया 6, तो 6 प्लांट्स। क्या हम क्या करें, हम 4 प्लांट्स लें कि 6 प्लांट्स लें? यहाँ पे हमें स्टैटिस्टिकल ज़रूरत पड़ती है कि हम क्या करेंगे, ये क्लास इंटरवल है, राइट, दिस इज एक्चुअली द क्लास इंटरवल। We will use class mark for our calculations. So we will make first class mark, and that class mark will be your x value, xi, जैसे हमने लिखा fi, that is xi. xi means x1, x2, x3, x4, यानी कशर पर number of plants कईता निमोस। x1 एक प्लांट, x2 3 प्लांट, x4 कुछ प्लांट। अब हम देखेंगे कि क्लास मार्क हम कैसे लेते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला, 0 + 2 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ, 1। मिड पॉइंट फॉर्मूला ना, सिंपल। 2 + 4 डिवाइड बाई 2, 4 + 6 डिवाइड बाई 2, 5 6 + 8 डिवाइड बाई 2, 7। हाँ इसमें कैलकुलेशन भी नहीं करनी क्योंकि 6 और 8 के बीच में एक ही नंबर है। अच्छा 8 और 10 के बीच में 9,
10 और 12 के बीच में 11, 12 और 14 के बीच में 13। हालांकि निकालना है ये एवरेज से, यानी 0 + 2 डिवाइड बाई 2, 2 + 4 डिवाइड बाई 2। अब हमारा मिल गया xi। xi मीन्स कितने प्लांट्स, 1 प्लांट, 3 प्लांट, 5 प्लांट, 7 प्लांट, 9 प्लांट, 11 प्लांट, 13 प्लांट। कितने घरों में 1 प्लांट है, कितने घरों में, तो वो घर कितने हैं वो हम लेंगे fi। How many houses? How many houses? 1 house, 2 house, 1 house, 2 house. So how many, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है उन घरों की, जिन घरों में एक ही प्लांट है वो एक घर है। फ्रीक्वेंसी क्या है उन घरों की जिन घरों में 3 प्लांट्स हैं तो वो 2 घर हैं। फ्रीक्वेंसी क्या उन घरों की जिन घरों में 5 प्लांट्स है वो एक हाउस है, राइट। ऐसे ही कितनी बार आ रहा है, कितने हाउसेज आ रहे हैं, 7 प्लांट्स वाले, 9 प्लांट्स वाले, 11 प्लांट्स वाले, 13 प्लांट्स वाले। तो हम क्या करेंगे, हम अब निकालेंगे टोटल कितने प्लांट्स हैं। अब नंबर ऑफ हाउसेज 1 है और नंबर ऑफ प्लांट्स 1 है। एक घर में 1 प्लांट है, टोटल कितना हुआ, पहले नंबर का 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। 1। यस। 2 घरों में 3 प्लांट्स हैं। दूसरी टर्न, 2 घरों में 3 प्लांट्स है, कितना हुआ टोटल, 6। इसी को हम कहते हैं fi multiplied by xi, because you are multiplying number of houses, that is the frequency, and xi, that is the class mark. Fi multiplied by, we are doing just multiplication. So 2 multiplied by 3 is 6, 1 multiplied by 5 is 5, 5 multiplied by 7 is 35, 6 multiplied by, ये 9 है, हाँ 9, 6 multiplied by 9 is 54, 2 multiplied by 11 is 22, 3 multiplied by 13 is 39, right? So this is our FIXI, यानी टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स सारे घरों में कितने हैं। नाउ अब हम देखेंगे, हमने अभी तक देखा टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं घरों में, मतलब 2 घरों में, यानी 2 वाले एक प्लांट कितने घरों में, 2 प्लांट्स कितने घरों में, यानी 3 प्लांट्स कितने घरों में, 5 प्लांट्स कितने घरों में, 7 प्लांट्स कितने घरों में। तो उसको हमने जब कैलकुलेट किया, दैट इज FI मल्टीप्लाई बाय XI। सो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू सम ऑल दीज, बिकॉज दिस नंबर इज गोइंग टू गिव यू, FIXI इज गोइंग टू गिव यू टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, राइट। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इज FIXI। FI मतलब XI, मतलब अगर FI1 है तो F1 मल्टीप्लाई बाय X1, जो हमने अभी निकाला, F1 मल्टीप्लाई बाय X1। और FIXI अगर I2 है तो दूसरा क्लास मार्क 3 मल्टीप्लाई बाय 6। I अगर 3 है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 6 मल्टीप्लाई बाय 9। सो I रेंजेस फ्रॉम, आप कह सकते हो I का रेंज क्या है, क्या है I का रेंज, हाउ मच विल बी द मैक्सिमम I। यस, आर यू गेटिंग माई वॉइस। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा आप पूछ क्या रहे हो। I का मतलब है, अगर I1 है तो ये पहला है, I1 मीन्स F1 मल्टीप्लाइड बाय X1। I अगर 2 है, F2 मल्टीप्लाइड बाय X2, राइट, F2 मल्टीप्लाइड बाय X2। सेकंड
second data, second what you say, row, second row, third row, fourth row, fifth row, sixth row, seventh row. So I can say that I ranges from 1 to 7. There are 7 rows. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So that is what I was saying, that how much will be the range of I. I एक जनरल नंबर, एक जनरल अल्फ़ाबेट है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए जनरल फॉर्मूला के लिए, क्योंकि अगर I1 है तो हमें पहली टर्म मिली F1 x1, अगर I2 है तो F2 x2, अगर I3 है F3 x3, अगर I4 है F4 x4, ऐसे ही अगर 7 है F7 x7 is 39, because F7 multiplied by x7 is F7 multiplied by x7, that is 39. So we got I ka range, we got from 1 to, I is from 1 to 7, because there are 7 rows in it, right? Right or wrong? यस सर, ठीक है। तो अब टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको मिला 1, 6, 5, 35, 54, 22, 39. Now simply going to add it, because this is the total number of plants in the range of 0 to 2, in the range of 2 to 4. तो हमें टोटल मिलेगा इसको ऐड करने से 1 + 6 + 5 + 35 + 54 + 22 + 39. सो इसको जब हम टोटल करेंगे उसको हम कहते हैं समेशन, एंड समेशन इज रिप्रेजेंटेड एट लाइक दिस. समेशन इज कॉल्ड द सम. समेशन मीन्स सम ऑफ these all numbers, जिसमें I is ranging from 1 to 7. Of what? Summation of what? Fi xi. Fi xi. So summation I runs from 1 to 7 Fi xi. इसका मतलब है अगर I1 है तो F1 x1 प्लस, क्योंकि समेशन आपको प्लस करवाएगा. अगर I2 है, अब आप 2 लगाओगे, F2 x2 प्लस F3 x3 प्लस F4 x4 प्लस F5 x5 प्लस F6 f6 प्लस F7 x7 इधर तक, क्योंकि I 7 तक है बस. तो ये हमारा F1 x1 है 1, F2 x2 है 6, F3 x3 है 5, F4 x4 है 35, F5 x5 है 54, F6 और x6 है 22, F7 x7 39. So summation I runs from 1 to 7 Fi xi is sum of all these, that is 1 plus 6 plus 5 plus 35 plus 54 plus 22 plus 39. How much will be this? Calculate this quickly. 162. Okay, 162. So summation I runs from 1 to 7 Fi xi is 162, right? अब what do you mean by जो मैं दूसरा summation लिख रहा हूँ, summation Fi या summation xi? I'll just write xi. Summation xi. So what do you mean by that? +5 +7 वो वाला रो उसको ऐड करना है हमें. तब कौन सा 5 + 7? 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13. राइट. और ऐसे ही summation Fi I runs from 1 to 7. Summation Fi 1 + 2 + 1 + 5 + 6 + 2 + 3. करेक्ट. तो एवरेज अगर हमें निकालना हो इन जनरल तो हम क्या कहेंगे? एवरेज बराबर है या मीन बराबर है टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ हाउसेस.
हमें पता चलेगा कि ईच प्लांट में एवरेज कितना है, राइट, यही है ना एवरेज, total number of plants divided Yes. by total number of houses. अब total number of plants जो है that signifies this thing, summation I runs from 1 to 7 fi xi. So this is now the standard definition. Summation I runs from 1 to 7 fi xi, ये हमारा है ऊपर वाला total number of plants जो हमने अभी निकाला, summation of this fi xi तो हमें मिला, लेकिन summation of fi xi is जो हमें 162 मिला, divided by total number of houses. So what do you mean total number of houses? हमें किसको ऐड करना है? Fi. Yes, fi. So summation fi. 20. Summation fi. And I runs from 1 to 7. So this is the average. This is the standard definition of mean. Summation I runs from 1 to 7 fi xi divided by summation I runs from 1 to 7 fi. This is the standard definition of mean for our this question, because we have written I runs from 1 to 7. We can write I runs from n 1 to n 1 to n fi xi divided by 1 to n fi. That's simple. So this is equal to fi xi summation हमें मिला था 160. हाँ, आपने क्या n कहा अभी? मैंने कहा अगर 7 के बजाय n number of terms होती तो हम क्या लिखते हैं? Summation I runs from 1 to n. 7, 20, 30, right? So it depends on whatever you take, whichever question you take. So summation I runs from 1 to 7 fi xi is 162 divided by summation I runs from 1 to 7 fi. How much was that? 20. 20. Okay. 8.1. 8.1, yes sir. So 8.1 इसका आंसर आ रहा है. Yes sir. So that means the average number of plants per house, यानी जो हमने लिखा था total number of plants divided by total number of houses, average number of plants per house is 8.1. So लगभग एवरेज में हर किसी हाउस में 8 प्लांट्स हैं. So this was the first question in which we took little more time because we defined little bit things here, summation I runs from 1 to n fi xi and all that. So we have discussed today a little bit about statistics and the basics of statistics and mean, median, mode and class interval, class mark, right, and the general definition of the average or mean. Sir, है ना इसमें which method did you use for finding the mean and why? इसमें क्या लिखा है? which method did you use for finding? ये इसको जो हमारा ये जो मेथड है summation I runs from 1 to n fi xi divided by summation fi, this is called the direct method. This is simply the direct method. Okay, so this is the direct method, and after that we'll do some 1 or 2 methods more, shortcut method or mean deviation method. शॉर्टकट मेथड होता वो शॉर्टकट नहीं है वैसे मीन डिविएशन मेथड, लेकिन बड़े नंबर्स के लिए वो शॉर्टकट हो सकता है, मतलब बिग डेटा के लिए मीन डिविएशन. तो फिलहाल हम कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड, सिंपल summation I runs from 1 to n fi xi divided by summation fi. So this is the average by which you can calculate the total number of plants divided by total number of houses, which is the average of plants, that is 8.1 plants per house, or you can say 8 closer to the integer. So 8 plants per houses is the average. So we'll stop today, and what we can do is we are having so you just try question number 2. It is also the same thing, but it is having different method I think. आप इसको अपने मेथड से कर लेना जो हमने अभी किया, फिर हम करते हैं इसको दूसरे मेथड से नेक्स्ट टाइम.
डायरेक्ट मेथड से कर लेना, Yes. ठीक है? So you try direct method and then Yes. we'll do the another method of calculating the average in the next class. Anybody having confusion in this or any question in this? No sir, आप क्वेश्चन नंबर 1 के पास फिर से ले जाइए, एक मिनट. Okay. Sir, क्या बोल रहे हो? मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था, मुझे हो गया क्लियर बस. चलो ठीक है. बर्जिस थोड़ा सा समझ में आया? Yes sir. चलो थोड़ा सा देख लो इसको फिर से और क्वेश्चंस करने की कोशिश करो. व्हाट इज क्लास मार्क, क्लास इंटरवल, तो इंशाल्लाह you'll feel more easy inshallah. Okay, we'll stop today. Okay, and inshallah tomorrow what time, like same time, because Ramadan. यही टाइम ठीक है. No sir. No sir, ये टाइम नहीं है. हम्म No sir.